Hello students, welcome back to my channel. Today we will do the diffraction of light and we'll discuss the diffraction of light through the rectangular glass slab. पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी कोई लाइट, मान लो लाइट ट्रैवल कर रही है, एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है. जब भी लाइट कोई मीडियम, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी, देयर विल बी स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट. whenever the light goes from one medium to another, there will be slight bending of light, and that phenomena is called refraction. So what do you mean by refraction? The bending of light when it moves from one medium to another medium is known as refraction of light. The bending of light when it moves from one medium to another medium is known as refraction of light. Is known as refraction. एंड नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लाइट क्यों बेंड कर रही है? कि अगर वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो वो बेंडिंग क्यों हो रही है? एंड द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. अगर वो एयर में है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी. अगर वो ग्लास में है, मान ली ग्लास है, तो ग्लास में उसकी स्पीड अलग होगी. सो द लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. सो द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज that the speed of light is different in different medium. That's why the light bends while going from one medium to another. So cause की है the speed of light is different in different मीडियम. सो फिर जब डिफरेंट स्पीड होती है हर मीडियम में, तो फिर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सो इट ट्राइज टू फाइंड दैट पाथ इन विच द टाइम विल बी लेस. वो ऐसा पाथ फाइंड करने की कोशिश करेगी लाइट जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी जिसमें उसे कम टाइम ट्रैवल करना पड़े, मतलब उसे उस मीडियम को कवर करने के लिए कम टाइम लगे, वो ऐसा पाथ फाइंड करेगी. That's why the light get bends. So refraction of light is the bending of light when it moves from one medium to another medium is known as refraction of light. And cause क्या है? The speed of light is different in different medium. अब हमें ये पता चला कि जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट है इन डिफरेंट मीडियम. नाउ वी विल गिव अ रिलेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम्स. And the speed of light is maximum in vacuum. Speed of light is maximum in vacuum. और उसकी वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. That is the speed of light in vacuum, which is equal to c is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर हमने कोई भी मीडियम में वैल्यू निकालनी है, मान लो हमारे पास ग्लास है, ग्लास में अगर हमने उसकी स्पीड निकालनी है, तो अगर कोई भी मीडियम हो, मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट किससे डिनोट करते हैं? बाय v से. स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम v से. ठीक है, तो रिलेशन बन जाता है n इज इक्वल टू c अपॉन v, वेयर n इज द refractive index of
medium. So this is the formula from where we can find the velocity speed of the light in different medium. So n is the refractive index of the medium, which tells how dense is that medium. Suppose the refractive index of glass is 1.5. I will denote it by Ng, and the refractive index of air is approximately 1. So we can take the speed of light in air equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is C. Now we have to find the speed of light in the glass. We can calculate the speed of light in the glass. What we can do, we take V is equal in this side, V is equal to C upon N. We know value of C is 3 into 10 to the power 8 upon N. We know the refractive index of glass is 1.5. So V is equal to 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सो ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. सो हम किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उस मीडियम में उसकी लाइट स्पीड की लाइट पता है. और वैसे ही अगर हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उस मीडियम में उसकी स्पीड, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं. इन अनदर एग्जांपल, the refractive index of water is 1.33. हमें पता है जो refractive index of water है कितना है, 1.33. We have to find the speed of light in water. So हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, n is equal to c upon v. तो क्या करेंगे, v इधर ले जाएंगे, c upon n वाटर लिख देंगे. क्या आ जाएगा, 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.33. अगर इसको सोल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर. नाउ वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through rectangular glass slab. तो क्या होता है, सपोज हमें एक ग्लास स्लैब दी गई है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, एंड हमने देखा कि लाइट इसमें से कैसे ट्रैवल करेगी, थ्रू दिस ग्लास स्लैब. दिस इज एयर, दिस इज एयर. सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ग्लास से, सो ये रेयर मीडियम होगा. ग्लास स्लैब का ज्यादा डेंसर है, फिर से रेयर मीडियम है. ठीक है, एयर रेयर मीडियम, ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम, फिर से रेयर मीडियम. अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा कर लेंगे ग्लास स्लैब का. दिस इज द नॉर्मल एंड सपोज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. तो हमें पता है जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है वो क्या करती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. So this is the refraction, angle of refraction. इसे मैं R1 से डिनोट करा देता हूँ. So this is the angle of incidence. इसे this is the incident ray AB. Then this is the, अब देखो पहले जो लाइट थी वो कहां से गई, रेयर से डेंसर की तरफ, तो क्या हुई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इट विल बेंड
away from the normal. This is the normal, so the light is bending away from the normal. अब यहाँ से बाहर जा रही है रे, तो ये होगी एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहाँ पर फिर से इंसिडेंट हुई थी ये इंटरफेस पर, तो दिस इज द सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे मैं I2 से डिनोट कर देता हूँ। दिस इज I1 R1 I2 E। दिस इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो क्या हो रहा है, लाइट पहले एयर से ग्लास के इंटरफेस तक पड़ी, और अब देखो मीडियम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। मीडियम कैसे चेंज होगा, रेयर टू डेंसर, सो द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो लाइट है वो जा रही है डेंसर टू रेयर, तो इट विल मूव और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको मैं नाम सी देता हूँ, दिस इज D। So light first A to B, angle of incidence, then it will bend towards the normal, angle of reflection R1, then this is the angle of incidence, the interface is glass slab and air, and the light is bending away from the normal. अगर मान लो अब ये ग्लास स्लैब ना होती तो लाइट ने क्या करना था, सीधा ट्रैवल करना था, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी थी, हमें पता ही है, light would have traveled straight. So this would be the path if there was no glass slab, but slab आने के कारण the light get bent because of the refraction. So ये shift आ गया, अगर हम perpendicular ड्रा करेंगे, this is the shift CE. So C is the shift, हम D से डिनोट करते हैं, D is called lateral shift. The shift which occur due to the presence of the glass slab is known as the lateral shift. We denote it by small d. So what happened? The light A is incident on the glass slab. Angle of incidence is I1. So because of the moving of the light from the radial to denser medium, it bends towards the normal. So after hitting it on the another interface of glass slab and air, the medium is changing to from denser to rarer, and it will move away from the normal. So this is the angle of incidence, angle of reflection 1, angle of incidence 2, and the light is emitting out of the glass slab, so this is the angle of emergence. And because of the glass slab, there is the difference in the path of the light, so this is the called lateral shift. So this whole topic is the refraction of light through the glass slab. Thank you.